ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਪਪ ਪਪ ਲੋਏ ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ
कह बिहून कतै सो पाए। ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭु ਮਿਲਾਏ। ਗਦਣ ਕੋਈ ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ ਨਾ ਕੋ ਸਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ वाट हमारी खरी उड़ेणी खन्यो तिखी बहुत पई। उस पर है मार्ग शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। कर कृपा प्रभ साध संग। अंदरों मंगयो प्रभ साध संग मेरी। प्रभ साध संग मेरी। या फिर देखा मेरा अल्लाह बेली। देखा मेरा कृपा साध संग मेरी। कर कृपा प्रभ साध संग मेरी। हाँ जी कर कृपा प्रभ साध संग मेरी। हाँ जी कर कृपा प्रभ साध सारी संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच खच के आखो सतनाम। मेरी भी अरदास करियो अपनी भी अरदास करे। मेरे भी दिमाग विच कई बारी इस तरह घूमदा फलाना फोन करना बड़ा जरूरी है, फलाना भी फोन करना है बड़ा जरूरी, तीसरा फलाना फोन करना है बड़ा जरूरी। कई बारी घूमदा दिमाग फलाने 8-9 फोन बड़े जरूरी। इस तरह एक खाना बन जाए अपने गुरु गोबिंद सिंह नूं फोन करना वही बड़ा जरूरी है। वो फोन हुंदा है गुरबाणी द्वारा, सिमरन द्वारा, सत संगत द्वारा। हुण इस वेले सत्संग कर रहे हो जिहड़े तुहाडे चों अभ्यासी ने, कन्नां नाल कथा सुणदे ने ते रोम रोम सिमरन राई कलगियां वाले नाल उन्हां दी तार जुड़ जांदी है।
एक बड़ा प्यारा इफेक्ट है कि जिवें दुनियावी काम सानू जरूरी जापदे ने, इस तरह ही नितनेम भी जरूरी जापण। जिवें होर काम सानू जरूरी जापदे ने, इस तरह ही संगत करनी भी एक जरूरी जापण लग पे। ते समझ लेना ऐसे जन्म विच तुहानू कलगियां वाले ने एक बड़ा वड्डा बार्डर पार करा दिता। जे इफेक्ट आ जाए भी संगत करनी भी मेरे लिए इतना जरूरी है जिवें रोटी खानी जरूरी। संगत करनी भी मेरे लिए इतना जरूरी है जिवें बच्चे नूं स्कूल भेजना जरूरी है। एक फैक्ट है जदों यह बार्डर बंदा टपदा फिर उस बार्डर का नाम है जिन प्रेम दियो नहीं बार्डर का ना है टप्पण तो बाद प्रेम फिर प्रभु मिलता। तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ सत्संगत प्राप्त हुई है। एक प्रकरण आप जी मेरे पिता कलगियां वाले तुसी संगत सिर ते हथ रख के सेवा ले रहे हो। जिवें दुनिया के स्कूल ने इस तरह ही बाबे नानक का भी स्कूल है, उहदियां भी क्लासां ने। अज 14वीं क्लास की बारी है ते पहलियां 13 केवल बोल के लंघदे आ, कई नवे आए होंदे ने। फिर 14वीं की महाराज 15-20 मिनट सेवा लैण। बाबे नानक दे स्कूल दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न लई उदम करना। अर्थ नहीं पता, रस नहीं पता, बस उदम की। पहली क्लास अज मेरे को एक बच्ची बैठी कोई 3 साल की, मेरे नाल बह के पाठ करन लग पई। मैं क्या तेन कित्थों तक आंदा है? कहंदी गावे को ताण तक जपजी साहिब। उन्हें 1.5-2 मिनट बाद कर लिया। ते मैं क्या कर लिया तू? कहंदी हाँ मैं चली आ। 3 साल की बच्चे अजकल अंग्रेजी स्कूल आई। मैं क्या 5 बार कर, 5 बार 5 बारी कर, 5 बारी बह गई। मैं 5 बारी कर दी कीता उन्हें। हुण वो बच्ची नूं अर्थ नहीं पता ये क्यों कर दो गावे को ताण पढ़ीए, कोई उन्होंने रस नहीं पता। पर ये पहली क्लास है, छोटा होवे बड़ा बई शुक्र है गुटका साहब पढ़िया है, शुक्र है कुछ कर रहा है। स्टार्टिंग बाबे नानक दे स्कूल दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न लई उदम करना। उदम तक बाबे नानक दे स्कूल दी दूजी क्लास मन पुणिया जांदा। चंगे मंदे दी पछाण हो जाती, मंदे छड्डे नहीं अजे पछाण हो जाती। बाबे नानक दे स्कूल दी तीजी क्लास चंगे कामां वल रुचि वधदी है, मंदे कामां वल घटदी है। बाबे नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जाए। बाबे नानक दे स्कूल दी 5वीं क्लास कुछ पुन दान वल रुचि वधदी है।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਛੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਚ ਰਹਿ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 14ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਆਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 14ਵੀਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ, 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ। ਆਹਾ, ਕਿੰਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ,
किनू लंबा दवां जिन्ने सामने कुछ कीता उहदे विच भी तू ही है। बड़ी बड़ी अवस्था है। 3-4 बचन पहले आप जी सेवा लो, सिर ते हथ रखो, मां बाप हो तुसी। भाई पिंदरपाल सिंह जी का यह 14वीं क्लास बारे बचन है। तुहाडी कौम विच सेवा करदे हो, किताबां विचों उन्हां दा बचन मिलिया है। कहते जिसनों ब्रह्म बिरती दी क्लास मिल जावे, सुनियो 14वीं, ये भाई पिंदरपाल सिंह जी का बचन किताबां कहते जिसनों ब्रह्म बिरती दी क्लास मिल जावे ओदी अवस्था बन जाती है। सुनियो जी, जिसनों ब्रह्म बिरती दी क्लास मिल जे ओदी अवस्था बन जाती है। ओदी अवस्था बन जाती है जेड़ी जोत मेरे पुत्र विच ओहो जोत मेरे गुआंढी दे पुत्र विच। आखो सतनाम, बड़ी बड़ी गल है। इहनूं छड्डना नहीं, ये गुआंढियां दे मुंडे नूं छड्डना नहीं, इहनूं मजा च खाना, इहनूं आ करना, सिर्फ इशारा ले लिया। पर जेड़ा तुहाडे चों ब्रह्म बिरती च पहुंचिया होएगा ओदी अवस्था बन जाती है। जेड़ा मेरे घर पुत्र बैठा है, जेड़ी जोत ओदे विच भावें मुसलमान है गुआंढी, भावें हिंदू है, ओहो जोत गुआंढी दे पुत्र विच भी। इहनूं बाणी चों भी दर्शन कर लो। मंदा किसनू आखिए, मंदा किसनू आखिए, किसनू आखिए, मंदा किसनू आखिए। अज के भैणों जां तिस बिन कोई ना है, जां तिस बिन कोई ना है। फरीदा खालक खल्क में, खल्क वसे रब माए। ये मैनू बड़ी खुशी होती जो गुरु ग्रंथ साहिब की मोहर लग जाए। फरीदा खालक खल्क में, खल्क वसे रब मंदा किसनू या तिस बिन कोई कोई होएगा जिहदी है 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती बने। कोई पता नहीं किस वेले ये बचन काम आ जाए। तो ये उन्हां दा गुरमुखां दा बचन, जेड़ी जोत मेरे पुत्र विच ओहो जोत गुआंढी दे पुत्र विच भी है। ब्रह्म बिरती बन जाती 14वीं क्लास। इहदे बारे बाबा नंद सिंह जी का भी एक बचन। बाबा नंद सिंह जी का बचन है, कहते पहले बड़े ध्यान नाल सुनियो, पहले अपने गुरु विच ब्रह्म नूं वेखना पएगा। 14वीं क्लास बारे महापुरुषों का कहते पहले अपने गुरु च ब्रह्म नूं वेखना पएगा, फिर गुरु जुगती देंदा दुनिया च ब्रह्म नूं वेखण दी। जिन्हों अपने गुरु चों ब्रह्म नहीं नजर आया उन्होंने दुनिया चों कित्थों आया। आखो सतनाम। एक तीजा वचन
महापुरुषों का ये 14वीं क्लास बारे ये भी बड़ा डूंगा है जी। तीजा बचन कहते जिदी ब्रह्म बिरती दी अवस्था बन जावे, जिदी ब्रह्म बिरती दी अवस्था बन जावे साध संगत। हुण है बड़ी उच्ची गल जे ध्यान नाल सुण। जिदी ब्रह्म बिरती दी अवस्था बन जावे असलीयत विच ओ दुश्मन दा भी दिल नहीं दुखाउणा चाहुंदा। आखो सतनाम। अंदरों दा वैर नहीं, दिल नहीं करदा ओदा दिल दुखाउणा। एक चौथा वचन महापुरुषों का सुन लो। कहते जिदी ब्रह्म बिरती दी अवस्था बन जावे ओनू चानना हो जाता है। सुनियो आ जिहड़े आपां निक्के निक्के झगड़े करते हैं सुन लियो। जिदी ब्रह्म बिरती दी अवस्था बन जाए ओनू चानना होंदा है, चानना हो जाता है कि इस जगत दे जीव नू दुखी करना रब नू दुखी करना। आखो सतनाम। 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती बन गई। जिन्हां दा नाम तुसी अगे सुनिया भाई अड्डण शाह। आखो सतनाम। हुण वेखियो जी ब्रह्म बिरती की हुंदी। एक मिनट पंक्ति पढ़ियो जी। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। मैं ये भाई अड्डण शाह जी का किताबां च ये बचन हैरान हो गया। ब्रह्म बिरती वाला वेखो, ओदा दिल ही नहीं करता कि मेरे कोलों कोई दुखी ना हो जाए। जिक्र सुन लियो भावें 10-20 पैसे। ये भाई अड्डण शाह जी होए ने, भाई कन्हैया जी सेवापंथी संप्रदाय अपने एक साधु मित्र नूं मिलन जा रहे। साधु मित्र आ तुसीं खेतां 'च वेखिया होएगा, वट हुंदी वट। खेत की वट ते जा रहे ने भाई अड्डण शाह। दोपहर का समा लिखिया 2:30 बजे। हुण आसे पासे खेत है, किसी मित्र नूं मिलन जा रहे भाई अड्डण शाह जी। हुण वट ते तुरे जा रहे हैं, तुरे जा रहे हैं ते उसे वट ते 10 फुट दूर तुरते पे 10 फुट दूर ना दरखत सी। हुण वेखो जरा किड्डा हिरदा गुरमुख दा मैं
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਰਖਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣਾਂ ਤੇ 30-40 ਪੰਛੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ। ਰੁਕ ਗਏ, ਰੁਕ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਐਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ, ਰਸਤਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਵੱਲ ਕੇ? ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਮੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਛੋਟਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਢੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਮੀਲ ਵੱਧ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਪਏ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 30-40 ਪੰਛੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡਣਗੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਐਡਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਲ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭੈਣੋ जल हरि फल हरि, जल हरि फल हरि, पूरे हरि बने हरि, पूरे हरि बने हरि, गिरे हरि। गिरे पहाड़ा च भी तू है ब्रह्म बिरती। कलगीधर महाराज की बाणी। गिरे हरि गुफे हरी, गुफा च भी तू है, पहाड़ा च भी तू है। गिरे हरी गुफे हरी,
हरी इहा हरी उहा हरी जिमी हरी जमा हरी गोबिंद बिन नहीं कोई गोबिंद बिन हरि कोई अच्छे भैणो सब गोबिंद है सब गोबिंद है सब गोबिंद है सारे गज के आखो ये 14वीं क्लास विच एक पहुंची हुई रूह दे अज दर्शन करियो जिन्हां दा नां तुसी हर वेले लैंदे हो भाई कन्हैया जी। दर्शन करियो 2.5-3 मिनट दर्शन करो बचपन दे पहले तो मैं संगत नूं ये बेनती करनी चाहुंदा वां कि भाई कन्हैया जी दे मां बाप अमीर सी माया वाले सी। एक हुंदा गरीबी एक है माया वाले ते भाई कन्हैया जी दी एडी ब्रह्म बिरती दर्द वंडण वाली बिरती जिन्ने पैसे खर्चण नूं मिलने वो जिन्नी माया भाई कन्हैया जी नूं बाल उम्र विच खर्चण नूं मिलनी जेड़ा लोड़वंद वेखना उन्हों माया दे देनी उन्हों माया दे देनी। एक दिन मां नूं कहंदे मां मेरा खर्चा वधा दे मेरा खर्चा वधा दे। अमीरी सी माता जी भाई कन्हैया जी नूं कहण लगे पुत्र तू मेरा लाडला है तू खर्चा वधाण दी गल करदा किथे जेबा तेरा सुनियो मां आ जेबा ऐला पुत्र मैं अज तू गिणती नहीं करांगी जदों जिथों तक तेरा जेबा भर जे वो सारा तेरा खर्चा हको सतना माया गई सी। भाई कन्हैया मैं बाल उम्र के दर्शन थोड़े जे भाई कन्हैया बड़े खुश हुण असीं खुश इत्थे हुन्ने आ कि आ भी खावांगे वो भी खावांगे साडे को माया ज्यादा आ गई है भी मौज लांगे वो क्यों खुश हो रहे ने हुण 10 लोड़वंदां नूं मैं होर दे सकां बड़ी बड़ी गल है। क्या बात देखो एक गुरमुखता है मनमुख खो के खुश हुंदा है देखिया ही गुरमुख दे के खुश होता है वंड के खुश होता है किसी का सवार के है बाल अवस्था है। मां कहती हूँ गिनती नहीं करांगी आला जिथे तेरा जेबा भर जाएगा माया बहुत ते बड़े खुश हुण होर एक बचपन का यह बचन लिखा है माया बनते दर्द वजों लोड़वंदां गरीबां जिन्हां बच्चियां दा नहीं कोई ते दूजा लिखिया भाई कन्हैया जी बचपन विच कितने चांस उन्हां दे एहो जे ने बचपन दे जिहदा तन नंगा वेखण अपने कपड़े ही उन्होंने दे आउंदे आखो सतनाम ऐसरो गुण लेना ये ब्रह्म बिरती
की मैं स्वाद दसा तुसीं समझ रहे। तेरे भाणे सरबत दा किसी का करके खुशी बस्तर दे आने। जदों वड्डे होए भाई कन्हैया जी जदों जवान होए उदों एक रिवाज सी, वो रिवाज सुने। एक रिवाज सी कि तकड़े बंदे माड़े बंदे कोलों जबरदस्ती काम कराउंदे सी, जबरदस्ती उन्होंने भार चुकाउंदे सी, चुके ना पा। ये उदों है हुण इधर कृपा है, औरत का सत्कार इधर हुण कृपा है। अजे भी कई इलाकों उदों हुण भी इधर मेरे उदों एक रिवाज भी तकड़े बंदे माड़े को जबरदस्ती भार चुकाउंदे सी, काम लैंदे सी। ते भाई कन्हैया जी का हिरदा एडा नरम, हुण जिन्हों वेखना ना भार चुक्या बेचारे ने तकड़े बंदे। ते भाई कन्हैया जी जदों जवानी चाहे हुण उत्थे आ जाओ बचपन तो अगे, भाई कन्हैया जी ने की कहना, पुरखा तू इन्ना भार चुकया, लिया मैं तेरी मदद कर दियां, कुछ भार तेरा मैं चुक लवां। जदों उन्हें शुक्र करना कुछ मेरा भार चुकन लगा, तो जदों उन्हें भार देना तो भाई कन्हैया जी ने कहना एक शरत है। वो भार वाले ने कहना की, जिथे तू जाना छड्डण भार, अद्धा भार तेरा मैं चुकांगा, कोई माया नहीं लांगा, सिर्फ तेरा भार वंडावांगा, पर एक शरत है सत्संग करदे जाना है। या तू कथा सुनाउणी है तो या मेरे को सुननी गज के आखो सतनाम। बई जिदा मैं भार भी वंडा रहा वा वह भी सत्संग विचों कुछ सुन के किते नाम नाल जुड़ जाए, बंदगी नाल जुड़ जाए। ते भाई कन्हैया जी ने जवानी च इस तरह भार चुक लेना वंडाउणा। हुण है सी पिछों अमीरी, लांबे आने शुरू हो गए मां नूं, लोकां लांबे देने। देखो तुहाडा पुत्तर मजदूरां नाल भार चुकदा है। वेखो मां ने आखिया भी अज गल करांगे। भाई कन्हैया जी घर आए, मां कहंदी पुत्तर तू मजदूरां दे नाल भार चुकदा, साडी बेइज्जती हो रही है, बंद कर रहे काम। अगों भाई कन्हैया जी कहते माता माड़े बंदियां नूं इन्ना भार चुकाउंदे ने, उन्हां दा साह लैना भी बजुर्गां दा औखा हो जांदा। माता मेरे कोलों दर्द वेखिया नहीं, मैं तां वंडदा भार, मेरे को वेखिया नहीं। अगों माता कहंदी पुत्र साडी बेइज्जती हो रही है, कोई हल कढ, साडी बेइज्जती हुंदी है, असीं हुण भार चुकांगे। ते हुण सुणिओ जिहड़ा भाई कन्हैया जी ने जवाब दिता जवानी माता जी नूं, माता बेइज्जती हो रही है मेरे भार चुकण नाल? कहंदे हां। माता लोग मेहणे मारदे तैनूं? कहंदी हां। ते भाई कन्हैया जी कहंदे माता जदों तेनों लोग बेइज्जती करन या मेहना मारन ते तू मन नूं इंज हौसला दे दिया कर जिवें किसे दे 5-6 पुत्र होण ते एक पुत्र कमला पैदा हो जाए, ते तू इस तरह हौसला दे लिया कर के एक पुत्र समझ ले तेरे घर कमला पैदा हो गए। आखो सतनाम। माता मैं ये दर्द वंडना नहीं छड़ना, तू मन नूं इंज खुलार ले कि मेरा एक पुत्र कमला पैदा हो गया। आखो सतनाम। एक मिनट पढ़े हो जी। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, भला कहो पावे बुरा कहो, बोलो भैणो भला कहो। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, कोई भला कहो पावे बुरा कहो,
कोई भला कहो पावे बुरा कहो, भला कहो पावे अच्छा भैणों सच दे राह ते तुरन वाले तुरे रहते। कबीर जी नाल भी बीती सी, मुस मुस रोवे कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे। तो दास इधर ना जावे क्योंकि अज दिल करदा भाई कन्हैया जी दी पूरी जड़ी जिक्र है ब्रह्म बिरती दा। देखो ब्रह्म बिरती दर्द ना वेख्या लोड़वंदा और वड्डे होए वैराग आ गया दुनिया कूड़े। सुनियो जी भाई कन्हैया जी नूं वैराग आ गया दुनिया कूड़े। एक दूजे नूं पुछदे ने गोबिंद नूं किवें भावां। एक गुरमुख रंगी रूह मिली कहंदे गोबिंद नूं पाउणा ही ते परमेश्वर नूं पाउणा ही, बीठल नूं पाउणा ही ते आनंदपुर साहिब चला जा गुरु तेग बहादुर जी दे चरनां विच। आखो सतनाम। गुरु तेग बहादुर जी को चला जा जे ब्रह्म नूं पाउणा है। उत्थे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर भाई कन्हैया जी नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर साहब पहुंचे ते जाके की कहंदे, कहंदे जी मैं गोबिंद नूं पाउणा, ब्रह्म नूं पाउणा। हाय हाय तुहानूं फिर भाई जसविंदर सिंह जी बचन सुणांदे हुंदे कई गुरु तेग बहादुर जी कहंदे सेवा करो, सेवा करदे आ दात मिल जाएगी। कहते की सेवा करा ते गुरु तेग बहादुर जी कहते भी थलों पानी लिया पहाड़ी ते। हुण इत्थे आके वेखो किड्डी वड्डी गल, 3 महीने पानी लियाते रहे इन्हां ने लियाना ते गुरु तेग बहादुर जी ने डोल देना। साडे वर्गा कोई हुंदा चंगा गुरु है, मैं पानी लियाना अड्डी पे चढ़ के पहाड़ी ते डोल देते। मैं गल शॉर्ट कर रहा, कुछ इतिहासकारां ने यह भी लिखा कि भाई कन्हैया जी ने कुछ समा घोड़ियां दे तबेले च सेवा की। गल शॉर्ट करके लिया एडा एडा हुक्म विच प्यार। मैं पानी 3 महीने हो गए डोली जाना, इन्हें पूछा ही नहीं। एडी प्यारी अवस्था गुर कया सोकार कमावो। गुरु ने मैनू कहा पानी लिया तू डोल ते भावें पिया जो मर्जी, तू जो मर्जी कर, मेरी ड्यूटी जो तू लाई लिया तू डोल दे, भावें इशनान कर भावें। वो गुरु तेग बहादुर जी ने आ वेख के ना अज 3 महीने हो गए सी नहीं की डोल दे क्यों गए। एडा हुक्म विच प्यार विच सीस सुटिया होया। ਉਹ ਜਦੋਂ गुरु तेग बहादुर जी ने दोवें हथ रख के आ 14वीं क्लास दे दिती, ब्रह्म विखा दिता, ब्रह्म बिरती बना दिती, ब्रह्म नाल जोड़ दिता, ब्रह्म ज्ञान की दात झोली च पाती। गज के आखो सतनाम। हुण बचन सुनने वाला जी ये लिख लेना हिरदे ते, मैनूं बड़ा अच्छा लगा जदों इनू ब्रह्म ज्ञान की दात दी गुरु तेग बहादुर जी ने ते एक लफज किया और सुनियो बहुत गौर। दात देण तो बाद गुरु तेग बहादुर जी ने की किया, दात देण तो बाद सुनियो तुहाडे काम आने वाला वचन। जब दात दी ना ब्रह्म ज्ञान की ते आ वचन कीता, निमरता दा पल्ला ना छड्डना, दात टिकी रहेगी। आखो सतनाम। हुण तुसीं अपना थोड़ा जिहा समझ लेना, कोई दात मिले तो तां टिकदी जे। निमरता दा पल्ला ना छड्डना, दात टिकी रहेगी।
ये बचन अजे पूरा नहीं होया। निमरता दा पल्ला ना छड्डना, दात टिकी रहेगी ते जदों दात टिकी रवे ते अगों वंडदे रहना। आखो सतनाम। ये वेखो भाई कन्हैया जी दी टकसाल, किन्ने महापुरुष हुण तक सेवा पंथी तुसी कई दर्शन करदे हो, उत्थों वेखो टकसाल। निमरता दा पल्ला ना छड्डना, दात टिकी रहेगी, संभाली ते वंडी। हुण आ जाओ, भाई कन्हैया जी ने सतगुरां तो दात लैके धर्मशाला बना ली। आए गए यात्रु रुकदे, संगतां रुकदियां, सब च ब्रह्म वेख के सेवा करदे। ब्रह्म बिरती मतलब कोई किसी जीव जंतु नूं दुख नहीं, ब्रह्म बिरती सारियां च रब परमेश्वर समझ के उन्हां दी सेवा बड़ी वड्डी बात है। हुण वो समा आ गया, गुरु तेग बहादुर जी ने चोला बदल लिया ते समा आ गया कलगीधर महाराज दा कह के आखो सतनाम। ते उदों भी भाई कन्हैया जी जंग दे मैदान विच इधरों सिंह तीर चलाउंदे ने, किरपाना चलाउंदे ने, भाई कन्हैया जी जल छकाउंदे। हुण जे कोई मुसलमान जख्मी हो गया, वो कहता पानी पानी पानी, उन्होंने भी पियाई जाते। आखो सतनाम। 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती, उन्होंने भी पानी पियाई जाते। हुण कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने शिकायत करती, देखो जी असीं एडी मुश्किल जख्मी करते हैं कि भाई कन्हैया जी फिर पानी पिया के उन्होंने सावधान कर देंगे। हुण कलगीधर महाराज नूं तो पता भी है 14वीं क्लास पहुंचे ब्रह्म बिरती। कलगीधर महाराज ने उन्हां दी तसल्ली लई बुला लिया, भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई है कि हुक्म गरीब तुहाडी शिकायत आई, तुसीं दुश्मनां नूं पानी पिआंदे हो। हुण अज पल्ले बन्निओ, मैं की दसां। कलगीधर दा कोई दुश्मन नहीं, कलगीधर दियां जंगां भी अमृत ने, अमृत आखो सतनाम। पर उस वेले कुछ शरीर ये समझते सी भी असीं दुश्मनां नूं मारदे हां पानी पी। उन्हां दी तसल्ली कराउणी सी। महाराज कहंदे तुहाडी शिकायत आई भी तुसीं इस तरह पानी पिआंदे दुश्मनां नूं। होए होए बंदगी नेत्र भारे, रोम रोम च भाई कन्हैया जी दे गुरु वसिया पे, हथ जुड़े ते कलगियां ले नूं बेनती कीती, महाराज मैं किसे दुश्मन नूं पानी नहीं। हुण 3-4 मिनट कोई ना उठे, क्योंकि दास दा दिल करदा मोहर लग जाए। ये सूरज प्रकाश दी पंक्तियां जे तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे भाई कन्हैया कित्थे पहुंचे। कलगीधर जी कहंदे तुसीं दुश्मनां नूं पानी पिआंदे, शिकायत आई इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी। उन्हां दा जवाब सुणिओ महाराज दे चरनां 'च, शायद तुहाडी भी कलगियां दे भावना बन जाए। की कहंदे ने भाई कन्हैया जी? इत सिंगन में आप विराजे, इत सिंगन में आप विराजे, इत सिंगन में आप विराजे, इत सिंगन में आप विराजे। बोलो भैणों, इत सिंगन में इत सिंगन में आप विराजे, एक सिंगण में अच भैणों। अर्थ समझ लेना। भाई कन्हैया जवाब कहते यार जेड़े सिंह लांबा दे रहे हैं, कहते गुरु गोबिंद सिंह जी इन्हां च भी तू वसदा है, इन्हां च भी तू ही। इत ईड़ी ते तत्ता सूरज प्रकाश, इत सिंगन में
आप विराजे। हुण अगली पंक्ति सुनियो। उत तुरकण में तुम ही छाजे, उत तुरकण में तुम ही छाजे, उत तुरकण। इन्हां ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ भी कलगियां ले तू है, उन्हां तुरकां 'ਚ भी तू ही। ध्यान दे। सब में रहे विराज समाना, सूरज प्रकाश। सब में रहे विराज समाना, शत्रु मित्र को जाए न जाना। सब थल तुमरो रूप निहारो, भेद भिन्न को नहीं विचारो। मोको तो इम ही दृष्टावे, मैनू तो इंज ही नजर आंदा। मोको तो इम ही दृष्टावे, तुम बिन दूसर नजर न आवे, तुम बिन दूसर नजर न आवे। इत सिंगन में आप विराजे, उत तुरकन में तुम ही छाजे। नहीं पहाड़ी न को दूजा, नहीं पहाड़ी, पहाड़ी राजा, नहीं पहाड़ी न को दूजा। जै कै करें आपकी पूजा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद। गज के भैणों, ये बड़ी बड़ी अवस्था जे। तैनू पिया पिलावा पानी। भाई वीर सिंह जी, भाई वीर सिंह जी की एक कविता है। तैनू पिया पिलावा पानी, सिर मेरे दे साईं। तुरक अतुरक ना दिसदा मैनू, तू सारे दिस आई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद। आज के भैणों, वाह वाह। गोविंद बिन नहीं कोई, इन्हां ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ भी तू विराजे है ते तुरकां 'ਚ भी। महाराज मैं किसे दुश्मन नूं पानी नहीं पियाया। गुरु गोबिंद सिंह जी जेड़ा पानी मंगदा मैनू इंज लगदा तू पानी मंगदा पे। ये 14वीं क्लास। देखो तुहाडे चों कोई कोई भावें ये 14वीं क्लास आ है, 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती बन गई है कि दुश्मन पानी मंगता पिया। वो दुश्मन नहीं कलगियां ने, मैनू इंज लगता तू पानी मंग, तू पानी मंग, मैं तेनू पियाया। सारी संगत दसो रोकिया है जे कलगियां ला, रोकिया ओनू मोड़िया भी नहीं पियाउणा नहीं। भाई वीर सिंह जी दी बंद ने की कीता कलगियां लेने। तुठे ते गल लाया प्यारे, तुठे ते गल लाया प्यारे। डब्बी हथ फड़ाई, ओ डब्बी हथ फड़ाई। पानी दे नाल मलम भी रखी, लोड़ पई तां लाई। ऊले मार्ग जिन्हें बताया, ऊले मार्ग जिन्हें बताया। अच्छा भैणो,
समा घट है। कबीर जी भी 14वीं क्लास पहुंचे जे कर कुत्ता सी ना कुत्ता, वो कुत्ता कहते प्रशादा लै गया चुक के ते कबीर जी घ्यो का डब्बा मगर, ये शब्द भी है गुरु ग्रंथ, चाटी का चीथरा कहाँ ले जाता, घ्यो लै गए मगर भजन, वो बीठल प्रशादा सुक्का लै गया घ्यो ते लाण दे भी तू ही हक सतनाम। वेखियो मैं सिर्फ इशारे दे रहा, ये है बड़ी वड्डी क्लास, ब्रह्म बिरती बन जानी। नामदेव जी भी इत्थे पहुंचे ब्रह्म बिरती। एक खूह सी नामदेव जी वाले, उत्थे गलत रूहां दा वासा सी, गलत रूहां प्रेत रूहां। हुण विच कोई शरारती भी हुंदे ना निंदक भी, उन्होंने ना राती आ जो भी हर जस कीर्तन कुछ ते जान के पानी मुकाता। वो नामदेव भी उस रात नूं उस हरी जस विच बैठे, जो पानी जान के मुकाता ते सारे कहते नामदेव जी वेखो संगत पानी वंडना ना, वो खूह तो पानी तुसीं लियाओ, वो खूह से गलत चीज़ां वास्ते। सारे कहते भी ये को नामदेव जी को परेशान बड़े आ, हुण अद्धी रात जाणगे ना पानी लैण, उत्ते गलत चीज़ां दा वस है, आपे उन्हां दे काबू आ जाणगे। हुण नामदेव जी ने बाल्टी बन्नी रस्सी नाल, ते ओह जिहड़ा खूह दी पौण जी हुंदी जदों बाल्टी विच सुट्टी, हुण इहनूं तुसीं मतलब ये ना समझिओ दूजी चीज़ सुट्टी, ते ओह जिहड़ी प्रेत आत्मा सी ना सामने आके खड़ी हो गई, सामने आके खड़ी हो गई। उन्हां दी चाल सी भी इनू नामदेव जी को परेशान आते आ काम मुकेगा एक बारी। जदों प्रेत आत्मा खड़ी हो गई ना, नामदेव कहते रब अच्छा ये भी तेरा रूप है। देखो ब्रह्म बिरती हुण इनू नहीं कोई कट कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द दर्ज है उस समय का। नामदेव जी ने उस वेले शब्द उचारिया, आओ कलंदर केसवा, आओ कलंदर बोलो भैणो आओ। ना ओ एडी आत्मा बड़ी मतलब भैड़ी शक्ल ते समझ लो कुछ भी, ते नामदेव कहते अच्छा इस रूप च भी रहना अपने बीठल नूं परमेश्वर नूं कहते अच्छा ए रूप च भी वसदे। आओ कलंदर केसवा कर बदाली भेसवा को सतनाम। ओ रब कहंदा ओ नामदेव मैनू इहदे च भी वेख लिया, हुण मैनू दर्शन देने पैणे। आखो सतनाम। ये ब्रह्म बिरती बड़ी अवस्था है, इहदे च भी तू वसदा है। हुणे मैं की दसां, मतलब ये साडे भगत भी उत्थे पहुंचे, 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती बन जाती है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं। यह शब्द असीं बोल तो लेने है बड़ी वड्डी अवस्था है। अवल अल्लाह ये प्रमाण देने सी हमारी। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब एक नूर ते 14वीं क्लास से ब्रह्म बिरती। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले हो मंदे, सब में जोत जोत है। 14वीं क्लास इस दे चानण सब में गुरसाखी जोत प्रगट होए। साखी सुन के तो जोत प्रगट होती समय संगत करना। तो जितने माई भाई आप जी बैठे हो भाई, ये 14वीं क्लास है ब्रह्म बिरती बन जाती है। कलगियां वाले ने मलम दी डब्बी दिती, पट्टी दिती, पानी जिथे पियाएगा लोड़ पिया ते ये भी लाई गज के आखो सतनाम। ये भाई कन्हैया जी उस अवस्था पहुंचे हुए। ये 14वीं क्लास है। आओ बड़े प्यार दे नाल ये 14वीं क्लास बाबे नानक दी ब्रह्म बिरती बन जाती है। ये क्लासां मिलदियां कित्थों ने जी? संगत विच आके आओ सारे बेनती कर लईए। कर कृपा प्रभ साध संग तेरी, कर कृपा प्रभ साध संग तेरी। 14वीं क्लास बहुत वड्डी
ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਆਓ ਇਹ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਵੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਵੇਲੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।